to all? Yes, Yes, sir. sir. Okay, and screen is also visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in our last lecture, we studied about the list. List that is a collection which is a order and changeable. It's allow a duplicate member in a Python. The list are written in a square bracket. Okay. Then how to access the item with the help of the list. Then in a square bracket you can write down the index number 0, 1, 2. These are the index number. Okay. Then negative indexing. Then range, you can range the index, start with the 2 and end with 5, but not a 5, up to 4. You can change the item value in a list. Then using a for loop, you can access the list. You can calculate the length of list with the help of LAN. You can add a new item in a list using a append, insert. You can remove the item with the help of the remove function. You can use a pop function also. If you're using a pop function, that is a topmost here, that is a 0, 1 and 2. The top, so the topmost is 2, so it's remove the index value having 2, so it's remove the cherry here. Then you can directly delete then a list and the index value. You can also delete the whole list. You can clear, you can copy the list. You can join the two lists with the help of the plus operator. Okay. Then you can extend the list. Now next one, that is your tuple. Okay, so everybody first clear about the list. Okay, yes or no? Clear about the list? Yes, sir. Okay, so now the tuple. The tuple is a collection which is a order. In a list, it is already ordered and it is a changeable. In a list is a collection which is a order and changeable. But here you can see here it is a unchangeable. It is a collection which is a order and unchangeable. मीन्स आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो टपल के अंदर. लिस्ट के अंदर आप वैल्यू चेंज कर सकते हो. ओके, टपल एंड लिस्ट बोथ आर इन अ ऑर्डर फॉर्म. मीन्स उसकी इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 वैसे ही होगी. ओके, दैट इज इन अ ऑर्डर फॉर्म. Okay, so which is a order and unchangeable. The difference is that it is a unchangeable means आप लिस्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. आपने एक बार लिस्ट बना लिया, then you cannot change the list item. Okay, so the tuple is a collection which is ordered and unchangeable. means आप tuple के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट के अंदर आप चेंज कर सकते हो. ओके, बोथ आर इन ऑर्डर, दोनों के लिए ऑर्डर सेम ही रहेंगे, बट टपल के अंदर इतना डिफरेंस है कि आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो. सो नाउ टपल्स आर रिटन इन अ राउंड ब्रैकेट. लिस्ट आर रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, but the tuples are written in a round bracket. Now we see the example how the tuple is
example of a tuple. So this one is an example of tuple. Okay, so tuples are written in a राउंड ब्रैकेट. ओके, सिमिलरली आप इस तरह एक्सेस कर सकते हो. अगर आपको एक्सेस करना है, कोई वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हो, दैट इज अ दिस टपल ऑफ वन. ओके, आप इस तरह से सिमिलरली जो लिस्ट में जैसे एक्सेस करते हो, इस तरह से आप यहाँ पे भी एक्सेस करते हो. सपोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन दैट दिस टपल नॉट इन अ राउंड ब्रैकेट. यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. यू हैव टू शो द इंडेक्स वैल्यू. Okay, so 2. Now if I write a 1, then it should. Okay. So the index value is 0, 1, and 2. These are the index value. Okay. Same thing in a list. Okay, that is a start with a 0 up to depend of number of items. Okay, and the tuple is, you can create a tuple with the help of a round bracket. It's also support the negative indexing. सपोज मैंने यहाँ पे -1 लिखा, then what is आउटपुट. आउटपुट क्या आएगा, चैट बॉक्स में लिखिए. what is आउटपुट. Okay, so I am negative -1, so you start with the -1, -2 and -3. Okay, so your output is cherry. Now if I change the value -2, then it's sort of banana. It is a -3, and if it is a -4, then index out of bound. That is a tuple index out of range. Okay, that is a one type of exception. Now you can also use a range. आप range भी use कर सकते हो. So 2 to 5. So this one is 0, 1, 2. So start with a cherry, orange, kiwi, and last one 2 to 5. So this one is a 2, 3, 4, not 5. Okay, so melon is not added. Now it is a 1 to 6. Then what is the output 1 to 6? Write down output in the chat box. In a short form is also allowed. आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो. दैट इज ए बी सी देन ओ के. एम ई इज फॉर मेलन एंड एम ए फॉर अ मैंगो. Okay, so what is output if we start with the 1 and 6. Start with the 1. So what is the first initial value of apple is 0. Next value that is a 1. So you start with the banana, that is a banana, cherry, orange, then the kiwi. Okay, and total value that is a 1, 2, 3, 4. Sorry, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So up to melon. Okay,
So this is about the ranging. You can also use a negative ranging. आप negative ranging भी यूज कर सकते हो. Same thing. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -5 and the -2. Sorry, -2 -5 to -2. So your output is mango, that is a -1, melon, that is a -2, okay, kiwi, that is a -3, orange, that is a I'm explaining it in this one is a -1, -2, -3, -4, -5, -6, and -7. What is the first value? That is a -4. So you start with the -4, kiwi, up to -1. So your output is orange, kiwi, and melon. Okay. Now suppose your output is -6 to -3. Then what is your output? -6 to -3. Then what is the output? Okay. So it start with the -6. So -6, that is your banana, cherry, up to -3, but you cannot add a kiwi. So banana, cherry, and orange. Now, if you want to change the value, अगर आप टपल की वैल्यू चेंज कर सकते हो तो नहीं कर सकते. आप टपल की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. ओके, फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया दिस टपल of how many elements are there? 3 and 4, 7. अगर मैं कोई नया एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, so it showed the error because the tuple object does not support the item assessment. Means आप कोई भी वैल्यू डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो. बिकॉज व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द टपल इज अनचेंजेबल. आपने एक बार ये टपल बना दिया ना, फिर आप उसके बाद चेंज नहीं कर सकते. दिस वन इज अ टपल, ये फिक्स हो गया, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो. अगर आपको चेंज करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कन्वर्ट. लिस्ट में कन्वर्ट करो, फिर लिस्ट को एक नया टपल बनाना पड़ेगा, नॉट विद द सेम. ओके, change the tuple value. Once the tuple is created, you cannot change its value. The tuple is unchangeable or immutable. So, okay, so आपको अगर करना है, then you have to use a tuple. tuple को list में convert करो. Okay, now y become list, list में add करो और फिर से x को tuple में convert कर दो.
ऐसे होगा डायरेक्टली लिस्ट टपल में आप चेंजेस करना चाहते हो तो नहीं होगा. ओके, क्लियर? यस और नो? बिकॉज टपल इज अनचेंजेबल. लिस्ट के अंदर आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. टपल के अंदर आप कोई वैल्यू डिलीट भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते. टपल डिलीट करना है तो फुल्ली एक आइटम को डिलीट नहीं कर सकते, फुल टपल को डिलीट करना पड़ेगा. ओके, क्लियर और नो? डिफरेंस पता चल गया टपल और लिस्ट का? किसी Yes. के ऊपर डाउट पूछ सकते हैं? यस. ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल. मैं ये एग्जांपल में ऐड आइटम. वंस द टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट ऐड आइटम टू इट. टपल्स आर अनचेंजेबल. देखो ये एग्जांपल में देखो कि यहाँ पे ये टपल वंस क्रिएट हो गया. ओके, एक बार क्रिएट हो गया और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ. डेट इज अ टपल ऑफ 3. यहाँ पे 0 1 और 2 ऑलरेडी है और यहाँ पे 3 वैल्यू में ऐड करना चाहता है एज अ ऑरेंज, बट इट रेज अ एरर because the tuple object does not support the item assignment. Okay, आप assign नहीं कर सकते हो because tuple is unchangeable. Okay, now आप tuple create करना चाहते हो. Okay, so this one is a one example. यहाँ पे देखो फर्स्ट में एप्पल कॉमा फिर कुछ नहीं है और यहाँ पे एप्पल देन कॉमा नहीं है. सो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे मैंने कॉमा ऐड कर दिया. सो जो भी इंटरप्रेटर है पाइथन का वो क्या समझेगा? दिस वन इज योर टपल. ओके, सो यहाँ पे मैंने कॉमा ऐड कर दिया, दैट मीन्स इट इज अ टपल. अगर मैंने कॉमा ऐड नहीं किया तो वो क्या समझेगा? दैट इज योर आइडेंटिफायर इज विच टाइप? दैट इज अ स्ट्रिंग टाइप. ओके, तो इस तरह से भी आप कंफ्यूज हो सकते हो. ओके, फर्स्ट दिस टपल एप्पल कॉमा. ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, देन इट सो द इट इज अ टपल. ओके, और यहाँ पे मैंने कॉमा ऐड नहीं किया है, देन इट सो द स्ट्रिंग. क्लियर दिस डिफरेंस स्ट्रिंग एंड टपल? yes or no? Next one, remove the item in a tuple. Tuples are unchangeable. You cannot remove the item from it, but you can delete the tuple completely. ओके, आप कोई आइटम को डिलीट नहीं कर सकते. यहाँ पे देखो आप एप्पल को डिलीट नहीं कर सकते या फिर बनाना को नहीं डिलीट कर सकते और फिर चेरी को भी नहीं डिलीट कर सकते. यू कैन डिलीट द होल थिंग. आप पूरी चीज को डिलीट कर सकते हो. डायरेक्टली
ठीक है, यहाँ पे टपल वो डिलीट हो गया है, प्रिंट नहीं कर सकते बिकॉज वो डिफाइन ही नहीं होगा इस, बिकॉज दिस टपल इज नॉट डिफाइंड। आप पूरा डिलीट कर सकते हैं ऐसे, तो टोटली डिलीट हो जाएगा। यू कैन डिलीट द होल टपल, नॉट अ आइटम। आप कोई आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको डिलीट करना है तो पूरा टपल को आप डिलीट कर सकते हो। ओके, आप एक टपल टपल वन से टपल टू को ऐड ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप तीसरे में ऐड कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ न्यू वन। ओके, आपको ज्वाइन करना है दो टपल को तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर टपल वन के अंदर आप ऐड नहीं कर सकते, आपको नया टपल बनाना पड़ेगा, दैट इज अ टपल ट्री। ओके, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप टपल वन इक्वल टू टपल वन प्लस टू तो आप नहीं कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली टपल वन और टपल टू, और ये एज इट वर्क एज ए न्यू आइडेंटिफायर, इट्स टेक अ न्यू आइडेंटिफायर, और टपल वन और टपल टू ये जो पुराना टपल है उसको ऐड कर दिया और उसको डिलीट कर दिया है यहाँ पे, इसलिए उसकी वैल्यू दिखा रही है, दैट इज ए बी सी। ओके, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे ऐड करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। आप टपल टू के अंदर कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, टपल वन टपल टू दोनों को ऐड कर लिया और फिर टपल टू एज ए न्यू क्रिएट किया है, ये टपल को डिलीट कर दिया है। आप राउंड ब्रैकेट डबल टाइम भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसको आप टाइप डिफाइन करके कर सकते हो। ओके, दैट इज अ टाइप कास्ट ऑफ टपल। नाउ काउंट, यूजिंग अ काउंट मेथड यू कैन द काउंट ऑफ 5। ओके, तो यहाँ पे काउंट ऑफ 5 कितने हैं, आपने ये एग्जांपल में देखा है कि दिस टपल डॉट काउंट ऑफ 5, तो 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 and 2 टाइम्स, तो आपका आउटपुट मिलेगा 2। ओके, so this one is a one example, आप एग्जांपल एग्जीक्यूट करना। ओके, सपोज मैं 1 लिखता हूँ, तो 1 कितनी बार है, दैट इज अ 1 टाइम। यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ। Now in a bracket I am writing down a 8,
मीन्स हाउ मेनी टाइम द 8s आर देयर इन दिस टपल, कितनी बार 8 है? That is a 1, 2, 3 and 4. So it's sort of 4. Okay. Suppose मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो 7, so it's so the number of sevens in a tuple is a 9. Then it's so the number of nines in a tuple. Next thing, that is an index. So index, that is a 8 of index, that is a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so the index of 8, index of 8 यहाँ पे कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडेक्स ऑफ 8. 8 की इंडेक्स वैल्यू कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, ये 8 की इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3. तो यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट होगी वो वैल्यू दिखाएगा इंडेक्स. ओके, एग्जीक्यूट करता हूँ तो पता चल जाएगा. Index of 8. Okay. So the index of 8, that is here 0, 1, 2 and 3. Now index of 7, जो first value है वो मुझे दिखाएगा. Okay, index of 7 क्या आएगा? index of 7, the output is, please write down in the chat box, क्या आएगा index of 7? Smith, the index of 7, that is start with the 0, 1, 2. Index value कौन से है वो display करेगा. So the now index of 9, index of 9, then index of 9 calculate करो. Okay, so this one is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Okay, now if it is index of 5, then it's so 1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Okay, so clear everybody? List and tuple. Next, that is your set. मैथमेटिक्स में आपको सेट पता है? यस और नो, सेट पता है? जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा सेट ऑपरेशन, दो सेट हो गए, सेट ए एंड बी, उसमें आपने वैल्यू ऐड की है, देन इंटरसेक्शन, यूनियन. Okay, so same thing here. Okay, now the set, which is a collection, is a unordered and unindexed. Unordered and unindexed list, and it is written in a curly bracket. Okay, that is, it is using a curly bracket. It is a unordered and unindexed. Unordered and unindexed. आपने एक सेट बनाया है और उसके लिए आपको सेट बनाना है, देन यू टू यूज अ कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने ऐड कर लिया, रेडी से एप्पल बनाना एंड नाउ द इंडेक्स वैल्यू 0, 1 and 2 in list and tuple, but here it is a random. यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसा कोई इंडेक्स वैल्यू होगी ही नहीं, अनऑर्डर फॉर्म में आएगी. ओके, बिकॉज इट इज अनइंडेक्स. यहाँ पे कोई इंडेक्स ही नहीं है, ये इंडेक्स नहीं है उसके अंदर 0, 1, 2 ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं है इन अ सेट.
Okay, in a set there is a no index value, यहाँ पे कोई index value नहीं है, and it is a unorder. आपने यहाँ पे ऑर्डर दिया है एप्पल बनाना और चेरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आउटपुट में वही डिस्प्ले होगा कि एप्पल बनाना और चेरी. ओके, इधर एग्जांपल देख लेते हैं. नाउ द आउटपुट में आएगा, देखो, चेरी एप्पल बनाना. सो इट इज अनऑर्डर्ड. आप जब भी टपल यूज करते हो, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ टपल, तो टपल में ऑर्डर मैंने क्या लिखा है, इट इज एप्पल बनाना एंड चेरी, तो वैसे ही प्रिंट होगा दैट इज एप्पल बनाना एंड चेरी, दैट इज ऑर्डर. ओके, जो ऑर्डर में आप दे रहे हो उसी ऑर्डर में. टपल में, टपल इज ऑल्सो ऑर्डर. दिस वन इज योर टपल, राउंड ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, दैट इज मीन इट इज योर टपल. तो टपल में भी देखो एप्पल बनाना और चेरी सेम वही फॉर्मेट में. नाउ आई एम चेंजिंग, इट इज इन अ सेट. Now what is output? Output is unordered, कोई ऑर्डर फॉर्म में नहीं होगा. दैट इज अ चेरी एप्पल बनाना, ऐसा कुछ भी रेंडमाइज होगा, नॉट इन अ ऑर्डर फॉर्म. क्लियर? यस और नो द डिफरेंस? ओके, सो इट इज अ अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स. यहाँ पे कोई वैल्यू इसकी इंडेक्स नहीं है. ओके, जिस तरह से अपने टपल यूज कर रहे थे कि फर्स्ट हम लोग लिस्ट लिस्ट के अंदर ये लिस्ट है. ओके, और यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ टू लिखता हूँ तो आउटपुट आएगा दैट इज योर चेरी. सेम थिंग इट इज इन अ आउटपुट आएगा दैट इज अ सेम थिंग इन अ टपल. टपल के लिए भी आउटपुट आएगा. नाउ सेट, सेट के लिए क्या आउटपुट आएगा, बिकॉज क्या डेफिनेशन क्या है सेट की, इट इज अ अनइंडेक्सिंग. यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं होती है उसकी. ओके, इंडेक्स वैल्यू नहीं होती है इन अ सेट. जो सेट में ऑलरेडी लिखा है हम लोगों ने, दैट इज अ इट इज अ अनऑर्डर एंड अनइंडेक्स्ड. क्लियर? ओके, सो नाउ हाउ टू एक्सेस. अगर आपको एक्सेस करना है तो आप लोग चेक कर सकते हो कि वो एलिमेंट्स अवेलेबल है या नहीं. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ इन, दैट इज अ मेंबर फंक्शन. तो आपको क्या होगा, इफ इट इज अ बनाना इज अवेलेबल इन द सेट देन इट्स रिटर्न.
સર ત્યાં સિંગલ બ્રેકેટ આવશે, સિંગલ કોમા. Okay, that is your banana in this set. Okay, so it's so the this set. Now you can see the example जो हमने already किए थे. That is a operator. This one is a in and not. मैंने कहा था कि हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें देखेंगे, दैट इज इन एंड नॉट इन. In is a banana in this set. So banana is available in this set. Yes, then it's so the true. Yes. Now we see the example. Now I'm changing orange in this set. No, so it's written a false. आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ चेक कर सकते हो कि ये आइटम अवेलेबल है सेट के अंदर, यस और नो. ओके, अगर आपको कोई भी एक्सेस करना है कि वो आइटम अवेलेबल है उस सेट के अंदर, तो यस और नो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो. ओके, नाउ इस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हो. दैट इज अ एक्स इन दिस सेट. ओके, ओके, सो जो भी सेट की वैल्यू है उसके अंदर ऐड हो जाएगी और आप इस तरह से प्रिंट आउट कर सकते हो. Now change the item. Means once the set is created, you cannot change its item, but you can add a new item. आप कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो. सपोज मैंने ये लास्ट एग्जांपल में आपने देखा कि अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है, चेरी की जगह मुझे ऑरेंज ऐड करना है, तो आप ऐड नहीं कर सकते हो. ओके, आप ऐड कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते हो. You cannot add, you can add a new item, but you cannot change. Okay, so अगर आपको ऐड करना है तो just use a dot add and the using a add method आप कोई भी आइटम को ऐड कर सकते हो. That is with the help of the add method. That is a this one is a list. This list dot add that is a method. You can add the new item in a set. ओके, सो यहाँ पे देख लो आप ऐड हो गई. इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले चेरी आएगा, एप्पल आएगा, बनाना आएगा. इट इज नॉट नेसेसरी, ऑरेंज भी पहले आ सकता है. दैट इज अ अनऑर्डर्ड. Next, to add a multiple item to a set, then using a update method, आप जो भी लिस्ट है वो ऐड कर सकते हो. Okay.
तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, लिस्ट को ऐड कर दिया, दैट इज अ वन लिस्ट इज ऐड, दैट इज अ ऑरेंज मैंगो एंड ग्रेप्स. Then with the help of alien, you can find out the number of item in your set. Now, मैंने बोला था कि आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन रिमूव द आइटम विद द हेल्प ऑफ रिमूव मेथड. यहाँ पे जस्ट रिमूव एंड आई एम रिमूव द एप्पल. लेट्स रिमूव योर, यहाँ से एप्पल निकल जाएगा. ओके, then same thing, remove, and you can also use a discard. With the help of discard, you can remove the item from a set. Now pop. ओके, जब मैं पॉप मेथड यूज करूंगा मीन्स कोई भी एलिमेंट को वो डिलीट करेगा. इट इज नॉट नेसेसरी कि जो टॉप मोस्ट हो वो इसी को डिलीट करेगा, एनीथिंग उसको वो डिलीट कर देगा. ओके, then clear method, you can clear the set using dot clear method. Next one, everybody know about the union. अगर दो सेट है, set 1 and set 2, set 3 equal to union set 1 dot union of set 2, then what is the output? Set theory आपने पढ़ा होगा, that is a set operation, union, that is a is having some value, okay, then B having some value. There is a set theory, you know about the set theory. Then C equal to A union B. तो इस तरह से आपका आउटपुट होगा, और इट इज अनऑर्डर मीन्स कुछ भी आउटपुट हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए. Okay. So the output is set 3 equal to 1 2 3 A B C. It is है ना, कुछ भी आउटपुट आ सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी, जो आउटपुट उसने ले लिया उस हिसाब से होगा. दिस वन इज अ यूनियन. You can also join with the help of update method. Same thing, आप update method से भी अपडेट कर सकते हो. Now with the help of difference method, आप difference method वो सब आपको यूज करना है. intersection method. Okay, that is your assignment. आपको क्या करना है, यूनियन मैंने दिखा दिया आपको, is a subset. Okay, intersection, ये सब ऑपरेशन आपको करना है. डिफरेंस, ओके, दैट इज योर असाइनमेंट. ये आपकी असाइनमेंट है. ओके, यूनियन मैंने दिखा दिया. नाउ इंटरसेक्शन एंड अ डिफरेंस, वो मेथड आपको यूज करनी है. ओके, सो क्लियर अबाउट द लिस्ट, टपल एंड सेट. यस और नो? किसी को भी डाउट है प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स. अगर क्लियर है प्लीज राइट डाउन क्लियर और यस.
Okay, now we what is it? Okay, time is. So I'm just giving the introduction about the dictionary. Now there are the collections. Are the first one, that is a list. List is a collection which is a ordered and changeable and indexed. Okay. Then we see the tuple. Tuple is a ordered. It is a unchangeable and it is an index. Now in a set is a unordered, unindexed. Okay. So you can see here in a Python dictionary are written in a curly bracket and they have a key and value. So set is written in a curly bracket. Dictionary is also written in a curly bracket. Now the dictionary that is a which is a unordered and changeable and indexed. क्या है? डिक्शनरी क्या है? इट इज अ अनऑर्डर, चेंजेबल एंड इंडेक्स. तो it's having a key and value. The Python dictionary are written in a curly bracket and it's have a keys and value. Now, for an example, enrollment number is your key. Okay, suppose your enrollment is your key. Then the value, suppose मैं लिखता हूँ आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है और लास्ट 2 डिजिट लिख देता हूँ. सपोज 45, that is a 45. So enrollment, that is your key, and value, that is your 45. Okay. नेम, यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ और कुछ भी लिख देता हूँ. सपोज ABC. So name, that is your key, and ABC, that is your value. Okay. Similarly, आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इंटीजर a equal to 5. So what is a? A equal to 5. So a is your key and 5, that is your value. A equal to 5, so that means a, that is your key, and 5, that is your value. So similarly, dictionary, the brand is Ford, model is Mustang, year is 1964. तो विच आर द की? की कौन सी है? कौन कौन सी की है वो प्लीज मेंशन कर लीजिए. कौन कौन सी की है? Brand, model, and year, these are the keys. Okay, and Ford, Mustang, and the year 1964, these are the value. Okay, now they are mapped with the, अगर मैं कहूँगा कि ब्रांड तो क्या होगा? Ford, that is a value. Means अगर आपको इंटीजर a equal to 5, okay,
इंटीजर a इक्वल टू 5 और मैं लिखूंगा प्रिंट a, तो क्या आना चाहिए 5. तो सेम थिंग अगर मैं डिक्शनरी ब्रांड लिखूंगा तो आउटपुट इज फॉर्ड. डिस डिक्शनरी मॉडल लिखूंगा देन आउटपुट इज मुस्टांग. अगर मैं डिस डिक्शनरी ईयर लिखूंगा देन द आउटपुट इज 1964. क्लियर? यस और नो? ओके, सो ये सेशन में अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं पता चला प्लीज मेंशन हियर चैट बॉक्स में, हम लोग रिवाइज करेंगे. अगर नहीं होगा तो हम लोग लैब सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, और कीप प्रैक्टिसिंग. अगर पाइथन आपको इट इज अ बिगनर लैंग्वेज, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना कोडिंग. ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लैब सेशन के अंदर पूछ सकते हो और फ्री आवर्स में पूछ सकते हो. ओके, सो प्लीज स्टार्ट. पाइथन आप स्टार्ट कर लीजिए, इट इज अ बिगनर लैंग्वेज. अगर आपको कोडिंग या कुछ भी आपको लास्ट में आपको जॉब ही करनी होगी, फॉर दैट यू रिक्वायर अ कोडिंग. Okay, so we end this session. Wait for the attendance.